چپکار از همه حیلت درگذشت شمشیر The Indian Army is in Bangladesh. Your Air Force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. ناظرین، فوجی تاریخ میں برطانیہ کی فوج نے سب سے بڑا سرنڈر کیا سنگاپور میں، جو پاکستانی فوج سے بہت بڑی فوج تھی۔ آپ سوچیں کہ برٹش امپائر نے سرنڈر کیا، اس فوج کی تمام یونٹس کو بیٹل آنر سنگاپور دیا گیا۔ 6 جرمن آرمی نے اسٹولن گراٹ میں سرنڈر کیا، جن کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ یہ ساری باتیں غیر مناسب ہیں کہ جنرل نیازی کی جگہ اگر نپولین بھی ہوتا تو وہ بھی سرنڈر کرتا، اور یاد رکھیے کہ نپولین تو مصر میں 1799 میں اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، لیکن یہ تو بڑی بات ہے کہ پاکستانی فوج نے دشمن کا 9 ماہ مقابلہ کیا، جو کوئی فوج نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے حالات میں جب عوام بھی آپ کے خلاف ہو اور دشمن کی بنائی ہوئی مختی باہنی بھی آپ کے خلاف محاذ کھول کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان، مہدی حسن حاضر ہے آج ایک ایسی کہانی کے ساتھ جو کبھی منظر عام پر نہ سکی، دا گریٹ اسکیپ فرام کیمپ 45 بائی پاکستان آرمی سولجرز۔ دنیا میں دشمن کی قید سے جنگی قیدیوں نے فرار اختیار کی، بڑے بڑے واقعات تاریخ میں لکھے گئے، اس میں سے پاک فوج کے جوانوں نے بھی یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ بھارتی قید سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب 1971 کی جنگ کے بعد جب بھارتی فوج نے پاکستانی جنگی قیدیوں کو اپنے کیمپ 45 میں رکھا۔ ناظرین، جب تعداد کی بات آئی کہ ان قیدیوں کی تعداد کتنی تھی تو سقوط ڈھاکہ کے بعد تشکیل دی جانے والی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سامنے آئی۔ 16 دسمبر کو ہوئے سرنڈر کے نتیجے میں 93,000 پاکستانی بھارت کے قیدی بنے۔ اس سے پہلے عالمی سطح پر ان کی تصدیق کی جاتی اخبار اور الیکٹرانک میڈیا میں یہ خبریں آئیں کہ یہ 93,000 فوجی ہیں۔ کاش وہاں 93,000 فوجی ہوتے، کاش۔ ناظرین، جنرل نیازی نے اپنی کتاب دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان میں لکھا ہے کہ میرے پاس کل 45,000 فوجی طاقت دستیاب تھی۔ فوج سے 34,000 مزید 11,000 سول آرمڈ فورسز مغربی پاکستان سویلین پولیس اور غیر جنگجوؤں کو ملا کر تھے جو باغیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یہاں تک کہ اگر ڈیپو، ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ورکشاپس، فیکٹریز، نرسز، لیڈی ڈاکٹرز، غیر جنگجو جیسے حجام، کھانا پکانے والے، جوتے بنانے والے اور خاک روب افراد کو بھی جمع کر لیا جائے تب بھی مجموعی تعداد 55,000 تک پہنچتی ہے۔ They have got superior numbers. As you know, point of attack, time of attack, number of troops is decided by the attacker. He tries to concentrate, make local superiority at that. ناظرین، یہاں پر شرمیلا بوس اپنی کتاب ڈیڈ ری کاننگ میں لکھتی ہیں کہ بھارت کی حراست میں 93,000 پاکستانی فوجیوں کو جب قیدی بنایا گیا، ایسا لگتا ہے تعداد غلط تھی اور مشرقی پاکستان میں پاکستان کی جنگی قوت میں بہت زیادہ اضافہ مزید الجھن پیدا کرتی ہے۔
नाजरीन, यहाँ पर के.सी. गरेवाल ने अपनी किताब इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिपेंडेंस पाक फौज की तादाद लिखी है। तकरीबन 42,000 बाकायदा फौजी ताकत के साथ इसे पूरे मशरकी पाकिस्तान में फैली हुई बगावत का मुकाबला करना पड़ा। कुल 91,000 जंगी कैदियों में से 56,694 का ताल्लुक मुसल्लह अफवाज से था। 12,192 नीम फौजी एहलकार और बाकी आम शहरी थे। नाजरीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 26 दिसंबर 1971 को सकूत ढाका पर एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया। इस कमीशन की सरबराही साबिक चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान कर रहे थे। यही वजह थी कि इस रिपोर्ट को हमीदुर रहमान कमीशन का नाम दिया गया। हमीदुर रहमान कमीशन 6 अफराद पर मबनी था। चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान चेयरमैन थे और अनवारुल हक वाइस चेयरमैन। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर तुफैल उर रहमान और 2 सीनियर जजेस का ताल्लुक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से था। नाजरीन, 12 जुलाई 1972 को रिपोर्ट मुरतब करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पेश कर दी गई। नाजरीन, लेकिन इस कमीशन की रिपोर्ट कभी मंजर आम पर नहीं आई। 1976 में जस्टिस हमीदुर रहमान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई के हवाले से इस्तफसार किया, मगर इंतहाई मज़ायका खेज़ जवाब आया। नाजरीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मज़ायका खेज़ जवाब ये सामने दिया कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मेरे पास से खो गई है। उस रिपोर्ट का क्या हुआ, कैसे खो गई, कहाँ खो गई, सुने ज़रा। जनरल फैज़ अली चिश्ती अपनी बुक में बिट्रेयल ऑफ अनदर काइंड में वो लिखते हैं कि इन्होंने जलवा दी थी, सारी कॉपीज़ को जलवा दिया था और एक कॉपी जो था वो हमें मिली थी जो ओरिजिनल थी। ये अल-मुर्तज़ा जो है जब वहाँ रेड हुआ था तो उसके ऊपर वहाँ इनकी जो बेड था उसमें से वो बरामद हुई। नाजरीन, हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट भुट्टो ने इसलिए गायब और जलवा दी थी कि उसमें हमीदुर रहमान कमीशन की तरफ से सबसे ज़्यादा सकूत ढाका का जिम्मेदार भुट्टो को डिक्लेयर किया गया था। नाजरीन, इन तमाम चीज़ों के बाद हमारे कैदियों का क्या हुआ? पाक फ़ौज के ये जवान जो भारतीय कैद में थे, इनके साथ क्या सलूक किया जाता रहा और भेड़ बकरियों की तरह इनको इंसान भी ना समझा गया। जिस वक्त हम सरेंडर हुआ है और जाने शुरू हुए हैं ट्रूप्स इंडिया में, वहाँ जब गुवाहाटी में हम पहुँचे हैं तो उन्होंने हमारे साथ जब सलूक शुरू किया, बस तो जिस तरीके से उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह और शाउट करते हुए हम पे वहाँ से हमें अपनी गाड़ियों में लोड किया, हमें सीधा आगरा जेल ले गए। पाकिस्तान ने गोल कर दिया। नारा लगाने शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर, ये वो सब। आहिस्ते उन्होंने समझा कि शायद ये एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 16 लोग मारे गए। नाजरीन, फिर यहाँ से पाक फौज के जवानों ने एस्केप करने का प्लान तैयार किया। नाजरीन, पाकिस्तानी फौजियों ने बहुत बार कोशिश की। ये गैर यकीनी और बेचैनी थी जिस तरह का जुल्म हो रहा था भारतीय फौज की तरफ से। कई बार सुरंग के ज़रिए ये कोशिश की गई, जिसमें से एक कोशिश कैंप 45 से कामयाब हुई। कैंप 45। नाजरीन, ये प्लान मेजर राजा नादिर ने तैयार किया कि अब हमने यहाँ नहीं रहना। कैसे निकलें? बैरक हैं, चारों तरफ डबल फेंस हैं, कोने पर मचाने हैं, सर्च लाइटें लगी हुई हैं, मशीन गनें फिटेड हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर और साथ में कुत्ते। फिर फैसला हुआ कि हम सुरंग बनाएंगे। नाजरीन, फैंस के करीब जो बाथरूम थे उनको सेलेक्ट किया गया कि हम यहाँ से सुरंग को खोदना शुरू करेंगे। नाजरीन, बाथरूम से सुरंग के खोदने का काम शुरू हुआ। यहाँ पर बाकायदा सबने प्लान के तहत काम करना था। सुरंग खोदना शुरू की गई और इस काम का वक्त दिन का रखा गया ताकि बआसानी इस काम को सरअंजाम दिया जा सके और दुश्मन को भनक तक ना लगे। नाजरीन, सुरंग बनाते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया कि मिट्टी का क्या करना है।
नाजरीन, सुरंग खोदते हुए आवाज़ का और सिपाहियों का भी ख्याल करना है ताकि किसी को इसकी कानो कान खबर भी ना हो। इसके लिए एहतियाती तदाबीरें बरती गईं। नाजरीन, मट्टी फेंकने के लिए कपड़े के अंदर मट्टी को भरकर अपने चादर के अंदर छुपाकर मट्टी को बआसानी बाहर ले जाए जाने का तरीका ढूंढा गया और चहलकदमी के बहाने उस मट्टी को डिस्पोज ऑफ किया जाने लगा ताकि दुश्मन को खबर तक ना हो सके। इस मुसलसल अमल से बाकायदा वो सुरंग बनाने में कामयाब हो गए। नाजरीन, ब्रिगेडियर रिजवान अशरफ कहते हैं कि हमें टनल खोदते हुए तकरीबन 7-8 दिन हो गए थे। ऑक्सीजन का मसला और थक कर हालत चूर हो चुकी थी। फिर अचानक उनको एक रोशनी नजर आई और फिर उन्होंने अपने साथियों से कहा कि हम कामयाब हो गए और इस तरीके से वो दुश्मन के चुंगल से निकलने में कामयाब हो सके। नाजरीन, ये सुरंग ज़मीन से 500 फुट नीचे खोदी जा रही थी जिसमें वो कामयाब हो गए और दुश्मन को चकमा देकर हमारे पाक फौज के जवान उसकी हिरासत से फरार हो सके। नाजरीन, पाक फौज के ऐसे जवानों को हमारा सलाम है। आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नाजरीन, इंशाअल्लाह हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेहदी हसन को इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।